हिस्से हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है, दूसरा प्रेजेंटेशन है, तीसरा सवाल जवाब के हवाले से। तो इस प्रोग्राम को जैसे मंछर झील पे आलूदा पानी के हवाले से जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो मंजूर थईम साहब का लिखा हुआ है और इस पे सारा काम किया हुआ है। मैं तो इस हवाले से ये कहूँगा कि मंजूर साहब बेसिकली जैसे कलीम साहब ने कहा तो हैं, वो सिंधी में बहुत अच्छे नावल लिखे हैं। आवाज आ रही है? नहीं समझ
منظور فہیم سندھی کے اعلیٰ پائے کے ناول نگار ہیں جس نے ہمیں 2 ناول برسات کے بعد قنوت تو دیا تھا، لیکن منچر پہ ایسا کام کیا ہے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے اور ان کی جو منچر پہ منفی اثرات پڑے ہیں، اس کی معاشیت پہ جو اثرات پڑے ہیں، اس کی تہذیبی ثقافتی طور پہ جو اثرات پڑے ہیں، اس نے وہ چیزیں دکھائی ہیں جو میرے خیال میں عام دیکھنے والا پڑھنے والا محسوس نہیں کر سکتا ہے، جو رائٹر جو اس سے منسلک آدمی ہے وہ کر سکتا ہے۔ منظور صاحب آج ہمیں اسی موضوع پہ پریزنٹیشن دیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس کا ماضی کیا تھا، ابھی حال کیا ہے، مستقبل میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میں منظور صاحب کو گزارش کروں گا کہ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ تھینک یو ریاض۔ دوستو، پہلے سبھی دوستوں نے شکر گزار ہے، اسپیشلی اتفاق جن مجھے موقع فراہم کیا تمام دوستوں سے پنجی سنت جو عام لوکل معاون جو گزر سفر جو ذریعہ منشور ان متعلق تمام سب کچھ بارے میں شیئر کیا۔ میں اتفاق آپ بہت مشکور، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی سندھی اور اردو دونوں میں آپ سے گفتگو کروں۔ جی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ زمانہ گزر گیا جب ہم اچھی آواز میں گانے لگاتے تھے، جو ہے وہ اب تو دیکھ کر جو آواز نکلتا ہے وہ بھی سنتے ہیں کہ وہ بڑا ہے۔ تو شکریہ۔ حقیقت میں میری ہوپ تھی کہ میں جب حیدرآباد سے نکلا تھا تو میں نے کہا کہ میں اتفاق کے جا رہا ہوں، اور اتفاق کے حوالے سے جو ایک امیجن ہمارے ذہن میں ہے، جو ایک ہماری ارلی ایج میں بنا ہوا تھا، جس نے ہماری تربیت کی، ہماری گروئنگ کی، لٹریری گروئنگ کی، پولیٹیکلی گروئنگ کی، میرے ذہن میں تھا، ایک میرے لیے بھی آنر تھی کہ میں اتفاق کی جو ہے جا رہا ہوں، اس پر میں اپنی ڈاکومنٹریز اور باقی ڈسکشن بھی کر سکوں گا۔ اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سیٹرڈے کا طے ہوا تھا، لیکن ریئلی کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ جس طرح میں سوچ کے نکلا تھا حیدرآباد سے وہ چیزیں نہ ہو سکیں۔ بہرحال ہم ہر جگہ پر اس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں، نہ صرف کراچی میں لیکن جہاں بھی حیدرآباد، گوٹکی، جہاں بھی ہیں ہم لوگوں کو اپنی طرف لے آنے کے لیے بہت تکدو کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل میں ہیں ہم اس وقت دوستوں کو لے آنے میں اور جمع کرنے میں۔ تو ظاہر ہے ارتقا بھی اس کا حصہ ہے، اس سوسائٹی کا، اس سسٹم کا جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ میں کچھ یعنی کہ اپنا ڈسکشن اور اپنا پریزنٹیشن تو لایا تھا کہ تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا، لیکن یہ اتنی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ آپ سے نہ شاید میں کر سکوں، تو میں ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رکھوں گا منشور کا، اور اس میں جو جس طرح سے ہم نے اس کو دیکھا، اس کی فلورشنگ لائف کو، اس کی یعنی آسودگی کو دیکھا، کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں جوہی سے، تو جوہی جو ہے منشور سے تقریباً 15-20 کلومیٹر پر ہے۔ تو ہم فریکوینٹلی جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی لیک تھی۔ وہ صرف لیک نہیں تھی جو ہم اس کے عام طور پر وہ کہتے ہیں، وہ ایک زندگی تھی، ایک متحرک زندگی تھی، ایسے جیسے آپ ہیں، میں ہوں، اس
जिस तरह से हम लोगों का ख्याल करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, इस तरह से जैसे इंसान होता है, वो भी इसी किस्म की एक माँ की तरह उसकी झोली इतनी कुशादा थी कि हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग उनसे जो है उसकी इस झोली से जो है वो होते थे, ज़िंदगी गुजारते थे। तो मैं उसका थोड़ा खाका आपके दरमियान पेश करूँगा, तो उसके बाद ही हम उसको लाइट ऑन करना, लाइट हाँ ऑन लाइट करना। थैंक यू। तो फिर ही हम उस पर डिस्कशन कर जाएंगे। सिंध जैसे कि आप भी जानते हैं, आप बहुत सीनियर दोस्त बैठे हैं यहाँ पर। बेसिकली सिंध एक एग्रियन एक बेस सोसाइटी है जो बेस करती है एग्रीकल्चर पर, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि उसके पास लेक बहुत हैं, यानी कि जो ढंडे हैं वो ज़्यादा हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में 10 के करीब बहुत बड़ी जो है वो लेक मौजूद है सिंध के अंदर, जो हमारे इर्द मौजूद है। और उन लेक का जो बहुत बड़ा जो फर्टिलिटी है वो ये है कि वो न सिर्फ लैंड जो है लैंड को इरोजन करती है, लेकिन मैंने जो ज़मीन है उसको फर्टाइल करती हैं, लेकिन वो एक साइकिल भी बनाती हैं। जो हमारे लेक्स हैं वो 3 किस्म की साइकिल बनाती हैं। एक तो माइग्रेटरी बर्ड का साइकिल बनाती हैं, जो असेसमेंट है मंचूर झील की, वो ये है कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा बर्ड्स इस साइकिल का हिस्सा थे, यानी कि 5000 बर्ड में तकरीबन 102 जो यानी कि 1993 की जो असेसमेंट है, यानी कि बिफोर पार्टीशन, वो ये थी कि 105 स्पीशीज़ मौजूद थी। बर्ड्स का तादाद तो 5000 से ज़्यादा था, लेकिन स्पीशीज़ जो थी बर्ड्स की वो 105 के लगभग थी। एक तो वो एक साइकिल बनाती थी, और दूसरा फिश था वहाँ की। और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के दौर की जो असेसमेंट थी, उनकी जो रिपोर्ट्स जो मेरी नज़र से गुजरी, वो थी कि तकरीबन उसकी 200 स्पीशीज़ जो हैं फ़िश की वहाँ मौजूद थी मंचूर के अंदर। एक तो वो उसका हमारा साइकिल बनता था, और तीसरा जो उसका साइकिल था वो था वाटर बॉर्न जो है प्लांट्स थे वहाँ के, जिसमें आपने सुना होगा पगों थे, बेर, ये सिंधी नाम है जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। ये 3 मेन मंचूर की जो है लाइफ साइकिल बनाते थे, जिस पर एक पूरा सर्कल चलता था। एक ह्यूमन यानी कि ह्यूमन इकोनॉमी चलती थी, एक ह्यूमन लेबर उसमें चलता था, एक पूरा माशरा उसमें से चलता था, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट उससे चलता था, एक पूरा प्रोविंस और पूरा मुल्क उससे चलता था। ठीक है। अच्छा ये ख़त्म कैसे हुआ? ये इतनी फर्टिलिटी, इतनी आसूदा जो है, जिसमें इतने सारे बर्ड्स थे, ये तकरीबन 1978 और 87 के बाद एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट लाई, यानी वापडा के साथ, कि भाई इस रीजन में अगर हम एक आर्टिफिशियल ड्रेन बनाएं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि तकरीबन उस वक्त जो ये कह रहे थे कि भाई तकरीबन 34 बिलियन हेक्टर ज़मीन जो है वो उसको रिकल्टिवेट कर सकेंगे, रिहेबिलेट हो सकेगी, जो उनके मुताबिक जो सेलाइन और वाटर लॉगिंग की वजह से जो है वो अनफर्टाइल है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। 2 प्रोजेक्ट उस वक्त उन्होंने डिज़ाइन किए थे, एक था RBOD और दूसरा LBOD। अच्छा, जो RBOD था वो था जो हमारे इंडस है, हमारी सिंधु नदी, उसका जो राइट बैंक है उसका नाम दिया उन्होंने RBOD, और इंडस का जो लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट का किनारा,
उनको जो है LBOD लेफ्ट बैंक आउटफ्लो ड्रेन जो है वो प्रोजेक्ट का उन्होंने एज अ नेम अनाउंस किया था। अच्छा, मकसद जो था वो ये था, लोगों को ये बताया गया कि अगर जो सेलाइन वाटर लॉगिंग का जो पानी है जिसकी वजह से ये लैंड अनफर्टाइल है और उनका बहुत बड़ा रकबा है, तकरीबन 34 बिलियन हेक्टेयर है, अगर ये आर्टिफिशियल ड्रेन हम इससे शुरू करें तो ये रकबा जो है वो काश्त के काबिल हो सकता है। और वर्ल्ड बैंक ने उनको इन्वेस्टमेंट किया, वाफडा भी उसमें दाखिल हुए और उस वक्त इस मुल्क की बहुत बड़ी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थी वो उनको ऑन बोर्ड लिया गया। उसमें हमारा एक दूसरे बहुत नाम थे जो इसमें प्रोजेक्ट में थे, जो मैंने ये डिज़ाइन किया था प्रेजेंटेशन, लेकिन अहम नाम जो है उसका एक FW का भी था, जो मिलिट्री की एक कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या दूसरी जो है करती है काम, FW था। और दूसरी भी लाहौर बेस, मोस्टली लाहौर बेस जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिनको ऑन बोर्ड लिया गया और इसमें इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, जो राइट बैंक उन्होंने शुरू किया वो गोटकी से शुरू किया और उनका ये था कि भी हम उसको लेकर राइट बैंक से जाकर जब उनको उसको ट्रेन करेंगे समुद्र के अंदर। अच्छा, जब उन्होंने गोटकी से उसको शुरू किया तो उस पर तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने जो एस्टीमेट लगाया था, लेकिन जब वो पहुंची यानी कि मिरपुकास के इस रीजन में तो उनके पैसे ख़त्म हो गए। ख़त्म क्या हो गए, लेकिन जो किकबैक्स और जो करप्शन की वजह से उनको जो है ये मामला जो है गड़बड़ हो गया और उन्होंने उस पर 12 बिलियन डॉलर्स और यहाँ के फंड जो है वो उसमें इन्वेस्ट किए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो ब्लेंडर करने वाले थे वो ये करने वाले थे कि इस फ्लो को, यानी कि राइट बैंक का जो फ्लो था उसको ये ड्रेन करना चाहते थे शपूरढंड, जो नियर बाय उसके दो हिस्से हैं शपूरढंड के, जो खासतौर पर जो ये है अपना जो रीजन है अपना ये जो है डीपला और ये जो डिप्लो और ये जो है बॉर्डर है ये इंडिया 2/3 इंडिया में 1/3 यस 1/3 इंडिया में 2/3 इंडिया में 1/3 जो है पाकिस्तान में। इनकी ये कोशिश थी कि इस ड्रेन उसमें करें जो है शपूरढंड में। ठीक है, देखें मैं इससे क्या अलमिया कहूँ कि एक आसूदा लाइफ को, एक फर्टाइल लाइफ को ये किस तरह से हमारे जो है वो कमर्शियल इदारे, हमारे जो है वो इन्वेस्टर जिसको तबाह करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ जो है मेंशन नहीं की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कि इसको ट्रेन कर रहे हैं शपूरढंड में, लेकिन जाहिर है इंडिया की अपनी जो है वो एक रिसोर्सेज होते हैं, उनको ये मालूम हुआ कि ये जो है RBOD को ड्रेन कर रहे हैं जो है वो इसमें शपूरढंड में। तो उन्होंने इस पर बहुत वायलेट किया, आवाज़ उठाया कि भाई ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप जो है ये एक सेलाइन, एक आलूदा पानी को जो है वो ड्रेन करेंगे एक फर्टाइल जो है वो जंगल में जो आपकी नहीं है, उसमें 2/3 हमारा हिस्सा है, कैसे आप कर सकते हैं। इस पर बहुत जो है डिस्कशन हुआ, इस पर बहुत जो है उन्होंने ऑन बोर्ड लिया सारी जो है वर्ल्ड बैंक और जितनी भी जो है इन्वायरमेंटल एजेंसीज थी उनको भी ऑन बोर्ड लिया कि भाई ये तो इन्वायरमेंट वायलेशंस है और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे अगर इन्होंने इस तरह का किया तो इनको फिर विथड्रॉ होना पड़ा। फिर उन्होंने ड्रेन किया इसको घारों के अंदर, घारों से ले गए और फिर समुद्र के अंदर जो है घारों का इलाका जो है उसमें क्रीक में हमने उनको ड्रेन किया। बहरहाल वो तो इंडिया था जिसने अपनी जो है वो शपूरढंड बचा, लेकिन ये पाकिस्तान मंशूर तो पाकिस्तान में थी,
वो अब आप किस कैसी पॉसिबल है कि वो बच सके। यहाँ तो इंसान नहीं बच सकता, ये तो फिर जो है वो दंड है जिसको क्या हम कह सकते हैं कि उनके साथ फिर क्या होगा। बहरहाल ये तो चैप्टर ख़त्म हुआ RBOD का कि उन्होंने यानी कि ड्रेन कर दिया जो है वो घारों की क्रीक में, और हमारी जो है जो शकूडन जो है वो बच गई। रीज़न उसका इंडिया था। अब हम आते हैं जो है LBOD की जो लेफ्ट बैंक की तरफ आते हैं। अच्छा, जब मंशूर थी तो मंशूर में पानी के 3 सोर्सेस होते हैं जो मंशूर को रिफिल करते हैं। एक होता है जो हमारे यहाँ जो खीरथर के माउंटेन रीजन है, जहाँ वहाँ बारिशें होती हैं, तो वो पानी अपने फ्लो करता है मंशूर के अंदर, और पूरे इस रीजन को जिसे हम काचो कहते हैं उसको ज़राब करता हुआ वो पानी जो है वो ड्रेन करता है मंशूर में। अच्छा, उस पानी से हमारा पूरा जो है वो काचो जो है वो फर्टाइल रहता है, और साल में तकरीबन 3 फसल भी वो हमने काचो के लिए हैं, यानी कि तो हमने शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप भी लिए हैं, वेजिटेबल भी लिए है वहाँ से, और ज्वार बाजर तिर ये सारी जो है फसल जो है वो इस पानी पर होता था। बहरहाल एक वो सोर्सेस होता था, यानी कि खीरथर से जो पानी बारिशों से आता था। दूसरा उसका मेन सोर्सेस था सिंधु दरिया। जब सिंधु दरिया का पानी बढ़ता था, वहाँ से ओवरफ्लो होता था, तो उसको उस पानी को वो ड्रेन करते थे मंशूर। वो उनका एक वाह था जिसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, अपनी दानिस्तर वाह, उसमें उसके ज़रिए उसको ड्रेन करते थे। दोबारा नाम लेंगे सर? दानिस्तर वाह, यानी कि एक केनाल था जिसको अपने वक्त ज़रूरत पर बंद करते थे और वक्त की ज़रूरत पर खोलते थे उसको। ठीक है, दूसरा ये सोर्सेस था। तीसरा उसका सोर्सेस था जिसे हम चंडन कहते हैं, जो जोई से गुजरती थी, और ये वहाँ से थी बलूचिस्तान का जो 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 इलाका था जखमाबाद, उनसे वहाँ से गुजरती थी, और इनको इन्होंने फिलो किया था मंशूर में। ये जो छंडन थी ये प्री पार्टीशन से पहले एक आर्टिफिशियल ड्रेन बनाई थी अंग्रेज़ों ने, ताकि वहाँ से बलूचिस्तान से जो पानी या खीरथर से पानी, जो जखमाबाद की एक झील है जिसे हमरढंड कहते हैं हम, जब उसमें ज़्यादा पानी बढ़ जाए तो हमरढंड वाला पानी जो है ना वो अपने से अपना छंडन के ज़रिए जो है वो ड्रेन करेंगे मंशूर में। उसको छंडन कहते थे, लेकिन वो छंडन जो थी वो यानी कि हमरढंड से कनेक्ट थी, और हमरढंड जो थी वो कनेक्ट थी बलूचिस्तान के पानी से, जो बलूचिस्तान से पानी आता है मुख्तलिफ बारिशों से, उससे मतलब फिल होती थी, या खीरथर के पहाड़ों से फिल होती थी। और जब वो ज़्यादा फिल होती थी तो उसको फिर छंडन के ज़रिए ड्रेन किया जाता था मंशूर में। ये 1930 अंग्रेज़ों का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने ये शुरू किया था। अब जब इन्होंने RBOD शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया वहाँ से, वो भी तकरीबन $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो ये लेकर आए वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो है वो डिपार्टमेंट वाले। अब उन्होंने शुरू किया, तो जब हमरढंड पर पहुँचे तो उन्होंने फिर से वो अपना जो एक रिवायती किस्म की जो बुक होती है उसका उन्होंने फिर से अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शुरू कर दिए, और उनके ये जहन में आया कि बजाय जो हम फिर से खदे खोदें और फिर से चैनल बनाएं, ये तो बनाया हुआ जो है वो हमें ड्रेन मिल रहा है छंडन की सूरत में, क्यों हम इसमें ड्रेन करते हैं वो पानी। अब हमारा अलमिया देखिए, उस वक्त में पूरी रीजन इस पर किराए कर रही थी कि भाई ये पानी जो है वो आप जो ड्रेन कर रहे हैं ये तो
जो मंचूर अपना जो मंचूर है छन्नड़ जो है वो तो कनेक्ट है मंचूर से। अब अगर ये आप ड्रेन करते हैं इसमें अपना जो है छन्नड़ में, तो वो तो सारी मंचूर जो है तो तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जितने भी हमारे इदारे थे, मसलन मेहरान यूनिवर्सिटी का एक इदारा है जो इस पर काम करता है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पानी जो आप ले आ रहे हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों से, उनका पीएच वैल्यू 800 से ज़्यादा है, ठीक है। और कम से कम हमें वैल्यू जो चाहिए किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, वो तो होता है 40 से 50, और इसका पीएच वैल्यू तो 800 से ज़्यादा है। इससे तो कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लिहाजा इसको ना करें आप इसको अलग से ट्रेन करके, जो आपका प्रोजेक्ट है, आपको जो ले जाना है समुद्र में, उसको फॉलो करें। आप ऐसे नहीं करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये था तकरीबन मुशर्रफ का दौर था, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी वो दिखाया। तो उन्होंने जिस तरह डिक्टेटर होते हैं, उन्होंने सारी जो है वो एडवाइस को, सारी जो है वो उसकी कंप्लेंट को जो है वो ख़त्म करके अपनी उसके किया, क्योंकि इसमें FWA इन्वॉल्व थी, जो मिलिट्री का जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और बहुत से लाहौर बेस्ड कंपनियाँ थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, और उन्होंने इस चीज़ को जो है इंटरटेन किया और उसको बनाया। इसी से ख़त्म होना शुरू हो गई मंचूर। इसी से सिलसिला एक हिस्टोरिकली एक सिविलाइजेशन का खात्मा शुरू हुआ। फिर उन्होंने इस छन्नड़ को नाम दिया MNV ड्रेन, यानी कि डिक्लेयर किया अपनी डॉक्यूमेंटेशन में MNV ड्रेन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि मेन नारा वैलीज, MNV मेन नारा, इसलिए नारा के लायक आए मेन नारा वैलीज ड्रेन, MNV ड्रेन के नाम से उन्होंने उसका डिक्लेयर करके उसको जो है ड्रेन कर दिया मंचूर में। अब जाहिर है कि जब 800 pph का पानी जब एक सिंपली एक पानी में जाएगा, तो उसका ऑक्सीजन लेवल तो जाहिर है डिक्रीज होना शुरू होगा, ऑक्सीजन तो ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो चलती है ऑक्सीजन पर है, और उसका ऑक्सीजन ख़त्म हुआ मच्छर का, तो वो लाइफ साइकिल जो मैंने शुरू में बयान की वो ख़त्म हुआ। अच्छा, उससे पहली जो है जो लाइफ साइकिल जो पहली जिस पर अटैक हुआ, वो उसका वाटर बॉर्न जो प्लांट्स थे वो ख़त्म होना शुरू हुए, और उन्होंने उसके रूट्स को जलाना शुरू किया, वो प्लांट्स ख़त्म हुए। अच्छा, जब प्लांट्स ख़त्म हुए तो उस प्लांट्स पर जो फिश जो सर्वाइव करती है वो ख़त्म हुई, क्योंकि फिश की फीड्स ख़त्म हुई, वो ख़त्म हुई। अब जब फिश की फीड ख़त्म हुई, तो बर्ड्स की जो लाइफ साइकिल वो भी ख़त्म हुई, क्योंकि जब फिश ख़त्म हुई तो वो बर्ड्स जिस तरह से वो उस साइकिल से आते थे, माइग्रेट करते साइबेरिया से, नेपाल से, इंडिया से, और उनकी फीड ख़त्म हुई तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। और सब जब ये सारी साइकिल ख़त्म हुई तो लोगों का गुजर सफ़र जो था उस पर मैं आपको बताऊं कि इस जो है लेक पर मोर देन 5000 जो है विलेज थे, 5000। इसमें वो नक्शा भी है, उन विलेज के नाम हैं जो। अच्छा, वो विलेज क्या थे? वो इस तरह थे कि हमारे जैसा हमारा शहर है जोई, उस पर हम ये कहते हैं कि भाई ये थहीमों का महला है, ठीक है, ये से रिजवी का महला है, ये सही चांडियों का महला है। इसी तरह उनके नाम थे उनके, जहाँ पर 5-6 कश्तियों के घर थे, कश्तियों के पर एक पूरा महला था, उनके नाम थे, उसके जो मुहाने थे उनके नाम पर वो मुख्तलिफ जो विलेज थे, मोर देन 5000 विलेज थे। उसकी जो है वो मंचूर पर जब ये लाइफ साइकिल उनकी ख़त्म हुई तो फिर उन लोगों का गुजर सफ़र तो ख़त्म हुआ, वो फिर क्या करेंगे? जो यानी कि एक जनरेशन से उनका गुजर सफ़र इस मंचूर पर था,
वो इस मंशूर की जो है वो इनकम पे था, जब वो इनकम ख़त्म हुई तो अब वो क्या करें, उनके पास एक ही तो स्किल था, यानी कहते एक ही स्किल था उनके पास, अब उनका क्या, कहाँ जाए? तो उन्होंने फिर माइग्रेट होना शुरू किया। कुछ लोग जो है वो गए अपना दूसरी किंजर गए, कुछ गुड्डू की तरफ गए, कुछ मंगला गए, कुछ कहाँ गए, इसी तरह ये सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुई। अब 2-3 चीज़ें मैं यानी कि आपसे शेयर करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। एक ये होती है कि भी हमारे यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किस तरह होती है, और हमारा ये सिस्टम, हमारा निज़ाम जो है लोगों को किस तरह डिस्प्लेस करता है। क्योंकि ये लोग हैं, कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि भाई एक आदमी को एक जगह से उठाया जाकर दूसरी जगह पर फेंक दिया। ये तो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल वहाँ उस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके का पूरा कल्चर उनकी पूरी ज़िंदगी में रचा बसा हुआ होता है। ये नहीं है कि वो अगर वहाँ से उनको उठाया गया तो फिर वो जहाँ भी रहेंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। ये कभी नहीं होता, कहाँ भी नहीं होता कि आप एक लोगों को कल्चरली डिस्प्लेस करेंगे कि वो वहाँ सेट हो जाएंगे उस सिस्टम में, उस निज़ाम में। ये पॉसिबल नहीं होता। वो इंसान हुए, कोई मशीन नहीं होती, वो कोई एनिमल नहीं होते क्योंकि आप उनको वहाँ से उठा कर कहीं भी अपनी मर्जी से जाकर फेंक दें। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस तरह होती है, और हमारे एक ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह से लोग अपने गांव से फिर अपने शहर से फिर अपने मुल्क से जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उनका इकोनॉमिकल रीज़न क्या होता है, इकोनॉमिकल वजह क्या होती है? मेरी नज़र में उसके 2 वजह होती है। एक तो हमारे यहाँ होता है ये होता है कि भाई वो सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है इंडिजिनस इकोनॉमी पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है अपने यानी कि ग्लोबल मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर। मसलन हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, उसकी क्या है इनपुट ये है कि हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, ब्रोकरेसी पे खर्च करते हैं, हमारा सारा सरमाया इसी पर है, रियल एस्टेट पर, ठीक है, डिफेंस पर, और बस इसी पर ही है। तो जो इंडिजिनस हमारा जो इकोनॉमी है फिर उससे वो सफ़र करती है, क्योंकि हमारी उस पर पॉलिसी नहीं बनती, हम पॉलिसी नहीं बना सकते, उस पर लोगों को अकोमोडेट नहीं करते, फैसिलिटेट नहीं करते, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, उनको हेल्थ एजुकेशन नहीं देते। लेकिन मंशूर के साथ ये सब कुछ हुआ तो, लेकिन उसका सबब जो था उनको डिस्प्लेस करने का वो ये था कि भाई क्योंकि ये लोग ज़्यादा डेमोक्रेट हैं और एक डेमोक्रेटिक जमात को वोट करते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि इनको यहाँ से डिस्प्लेस करो ताकि अपने लोगों को जो है वो उनको असेंबली में लाया जाए। ये मिलिट्री यानी कि कल्चर की एक बहुत बड़ी एक उनकी फिलॉसफी थी कि भाई जहाँ भी एक डेमोक्रेटिक एक इन्वायरमेंट हो उसको ख़त्म करो, और जहाँ भी ये इन्होंने माना जिस तरह का यानी कि ये काम किया वो वहीं उनका यानी कि फोकस इस पर था कि वो लोग पॉलिटिकली तौर पर कमज़ोर थे। अच्छा, जब लोग डिस्प्लेस होंगे तो वो न सिर्फ मॉरली तौर पर कमज़ोर होंगे, इकोनॉमिकली तौर पर भी कमज़ोर होंगे, और जब मॉरली और इकोनॉमिकली तौर पर कमज़ोर हो गए तो वो डिसीजन नहीं कर सकेंगे, वो फिर हमारी मर्जी से वो कास्ट कर सकेंगे। तो उन्होंने इसी तरह का काम किया, लोगों को इकोनॉमिकली तौर पर कमज़ोर किया, लोगों को जो है फिर कमज़ोर करने के बाद उनका जो पॉलिटिकल विल था वो उन्होंने ख़त्म किया, लोगों को डिस्प्लेसमेंट करने पर मजबूर हुए। फिर एक बहुत अरसे तक वहाँ जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक लोग इलेक्टेड होते रहे, और फिर इसी तरह से हमारा ये एक सिस्टम चलता रहा। एक तो डिस्प्लेसमेंट का मुझे ये रीज़न बात समझ में आया।
اور دوسرا جو مجھے ڈسپلیسمنٹ کا ریزن سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کے اپنے یعنی کہ انکم کے ریسورسز ہیں، تو پھر ہم لوگوں کے ریسورسز کی پرواہ کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے آپ ہماری اسمبلی میں جتنے بھی فیوڈل بیٹھے ہیں ان کے اپنے کے ریسورسز ہیں، وہ اپنے ریسورسز جنریٹ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔